Hello, class 12 students. So, in this lockdown, welcome to online classes. This is Leena Arora, ex faculty from St. Mary's Convent, having over 20-year teaching experience. So, let us start with the very first chapter of our syllabus, that is solid state. Now, as we proceed with the chapter, you all must know what are solids. Solids क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. तो solids क्या हैं? Solids are those which have definite shape and definite volume. जिनकी डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है वो सॉलिड्स होते हैं. यू ऑल माइट हैव स्टडीड दिस इन योर प्रीवियस क्लास. 9th क्लास से आप ये सब पढ़ते आ रहे हैं. तो प्रॉपर्टीज भी आपको पता ही है. सॉलिड्स आर रिजिड, हार्ड, इनकम्प्रेसिबल. हार्ड होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते. दे पोजेस हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होती है जिनकी. ठीक है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इस तरह से जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली एंड कम्पैक्टली पैक हो जाएंगे. सो इंटरमोलिकुलर स्पेस विल बी नेग्लिजिबल. That do not possess random motion. Particles इधर उधर move नहीं कर सकते. इसलिए no random motion is shown. Instead, what type of motion they show? They show a vibratory motion at the fixed mean position. एक ही position पे vibratory motion, ऊपर नीचे vibrate होके they at fixed mean position they show vibratory motion. In solids क्या होता है? Intermolecular forces जो होते हैं they are quite strong और kinetic energy is negligible because there is no random motion of the particles. So intermolecular forces are stronger than kinetic energy. Then that state is called solid state. So in this way you can define solids. Now second comes classification of solids or types of solids. अब types of solids करने हैं हमने और किस basis पे करने हैं? On the basis of arrangement of particles in three dimensions. तो three dimensions में जो solids के particles हैं वो किस तरह से arranged हैं, that is the classification basis. So basis of classification is the arrangement of particles in three dimension, whether they are regularly arranged or irregularly arranged. So on this basis the solids they are of two types. One is crystalline solid and other one is amorphous solids. So in crystalline solids you must know, in crystalline solids are those in which there is a regular three dimensional arrangement of particles. जहाँ पे रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. और जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट आर इज नॉट रेगुलर, इंस्टेड इरेगुलरली पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, दोज आर कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दे हैव रेगुलर, दे हैव रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इसमें होता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड. लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड इनको बोला जाता है. तो रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होने की वजह से दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड. सो परफेक्ट स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स का रेगुलर स्ट्रक्चर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होते हैं. intermolecular forces among particles are same, therefore they melt over a same temperature. Same temperature पे break down करेंगे. Therefore crystalline solids they show sharp melting point. इनका जो melting point है वो sharp होता है, वो एक ही temperature पे सारे forces break down कर जाते हैं. So they possess sharp melting point. Third, इसके अंदर they show clean cleavage. अगर इसको knife के साथ आप काटेंगे so they will undergo clean cleavage because of regular structure they are showing. And fourth, they are anisotropic in nature. Anisotropic होते हैं nature में. Anisotropic nature means solids, इसके अंदर the properties of solid, physical properties of the solid, ठीक है, that is different values of anisotropic nature. क्या है anisotropic nature? Anisotropic means physical properties of solid. physical properties कौन कौन सी होती हैं? like refractive index, म्यू आप कह सकते हैं, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब physical properties हैं. physical properties that show different values from different directions. different values from
डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. They show different values from different directions. Those are anisotropic in nature. So, why they are anisotropic in nature? Because it's like this. Suppose you see the regular three dimensional arrangement होता है particles का इस तरह से, ठीक है. अब इसके अंदर जो है, जब रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं? पार्टिकल्स के साइज पे, पार्टिकल्स की लेंथ पे डिपेंड कर रही हैं. अब देखो, व्हेन यू प्रोसीड फ्रॉम वन डायरेक्शन, यू आर कमिंग अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स. अगर आप इस डायरेक्शन से मूव करते हैं, ओनली पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स आर कमिंग. अगर इस डायरेक्शन से आते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स आर कमिंग. So that means an isotropic nature particles are having different size from the different directions, and hence properties will show different values from different directions, and this is called an isotropic nature of the solid. So crystalline solids have an isotropic nature. So these are the properties of crystalline solids. Example है इसके अंदर, like NaCl compound, like NaCl, KCl, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, इस तरह के ये सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं. जो भी मेटल्स हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है. फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन अभी करेंगे. तो इस तरह से जो है SiO2 सिलिका होता है. ये सिलिका की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है क्वार्ट्ज और एक होता है ग्लास. सो क्वार्ट्ज दैट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म और ग्लास दैट इज द एमोर्फस फॉर्म, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ग्लास दैट इज द एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, एंड SiO2 की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो आपकी ये होती है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ देयर कम्स नेक्स्ट अमोर्फस सॉलिड्स. नाउ इन अमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है कि पार्टिकल्स दे डू नॉट शो रेगुलर अरेंजमेंट, डू नॉट शो रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है. ये रेगुलर अरेंजमेंट शो नहीं करते. दे डू नॉट शो रेगुलर अरेंजमेंट, बट देयर कैन बी अ रेगुलरिटी. रेगुलरिटी आ सकती है ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, ठीक है. फॉर अ शॉर्ट वाइल इसमें थोड़ी सी रेगुलरिटी आ सकती है. देयरफॉर दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, ठीक है. तो इस तरह से आप इसमें बताएंगे कि दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, amorphous solids. Now, because of their irregular structure, intermolecular forces are of different magnitude. Therefore, they melt over gradual range of temperature. They melt over gradual range of temperature. They do not show any sharp melting point, but rather they melt over gradual range of temperature. ठीक है, ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया, मेल्ट ओवर ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. थर्ड, बिकॉज दे डू नॉट शो रेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है. दे शो, थर्ड पॉइंट, दो रेगुलर स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, ठीक है. तो दे डू नॉट शो क्लीन क्लीवेज, डू नॉट शो क्लीन क्लीवेज, ठीक है. क्लीन क्लीवेज भी शो नहीं करते. they undergo irregular breakage. And fourth, they are isotropic in nature. Isotropic means अब क्योंकि हर तरफ से ये irregular हैं तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन. वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं दे आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है. ऑल डायरेक्शन से ये सेम है फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू. एग्जाम्पल है इसके अंदर ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, रबड़, ठीक है, इस तरह से. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स. इनको सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है. वाई दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स? बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर स्ट्रक्चर. इरेगुलर स्ट्रक्चर की वजह से दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स, पहली बात. एंड सुपरपूल्ड लिक्विड्स बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव द लिटिल टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है. तो थोड़ी सी इसमें फ्लूइडिटी आती है
So therefore, that is called pseudo solids and supercooled liquids. So in this way, you can explain the differences between this crystalline solids and amorphous solids. So if you like my video, you can join my classes. Thank you.